अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेंगे स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जरा स्टूडेंट लिसन में, ठीक है। Okay students, now combination of resistance, we know about a resistance flow in any circuit. So student, first of all, there are two types of combination of resistances. Resistance, that mean resistors. Resistors is the instrument which help to the resistance, flow of resistance. So suppose student, two types of combination of resistance. First type in a series, and second type in a parallel. Okay students, suppose it is R1, it is R2, and it is R3. Three resistor we take, all have a resistance R1, R2 and R3. It is joined with a cell. Joined with a cell. Joined with a cell. In a class 8 or class 7, student, we are studied about what is closed circuit, what is open circuit. It is very easy. Hello. Here students, potential difference. Potential difference between this circuit flow, the potential difference. We take a potential difference V. Now flow of current I, current I, current I, current I, current I. That means current in this page, current is same. Current is same because student aids are joined with a nodes, one nodes. ये जो है स्टूडेंट एक ही नोड से सारे ज्वाइंट हैं, जिसके कारण चार्ज फ्लो और कम आउट, बोथ टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर इसके कारण एक ही नोड से ज्वाइंट होने के कारण चार्ज फ्लो भी करेगा और कम्स बैक भी आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, करेंट इन अ सीरीज, in series, current is same, but potential difference may be changed. Potential difference, potential difference change is changeable. Potential difference is changeable. Now current is same and potential difference is changeable. So student,
Now A to B, point A to B, B to C, and C to D. Now potential difference PD between A to B, A to D, V1 equal to V1, सपोज कर लेंगे V1 इक्वल टू I इंटू R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. Okay student, according to Ohm's law, PD between B to C, V2 equal to I into R2. Potential difference between A to B, V1 equal to I into R1, B, B2C, B2 equal to I R2, and potential difference between B to D, C to D, V3 equal to I R3. Now student, total potential difference in a circuit is same V, so that total potential difference V equal to student V1 plus V2 plus V3, because this V is total potential difference in a circuit, so both are adding. Okay students, now total resistance of in this circuit I assume R. So नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं. Have you any types of confusion? After the class, you will ask me. Okay students, I hope आप नोट कर लिए होंगे.
चलें इस पॉइंट को थोड़ा हटा देते हैं. Now student, total resistance of this circuit is R. So V equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट? IR equal to IR1 plus IR2 plus IR3. सो मेनी स्टूडेंट, जितने रेसिस्टेंस जुड़े होंगे, लाख हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिए, बट फॉर्मूला रिमेन्स सेम. Okay, IR equal to I is common R1 plus R2 plus R3 plus. Okay students, I cancel. R equal to student R1 plus R2 plus R3. Okay students, now student, one questions, why we can add a ammeter in a सीरीज. सीरीज में जो है हम करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज जो करते हैं उसे सीरीज में ही क्यों कनेक्टेड करते हैं, कंबाइंड करते हैं. ये क्वेश्चन आता है बिकॉज रेसिस्टेंस वेरी हाई, resistance very high, but ammeter has a very low resistance to maintain this. इस रेसिस्टेंस को ही मेंटेन करने के लिए लो रेसिस्टेंस का जो है हम ammeter यूज करते हैं टू द मेजरिंग ऑफ करंट. मेजरिंग ऑफ करंट. एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स हियर? रेज योर हैंड. हाँ नीरज. सर एमीटर का क्या बोले सर? एमीटर आपने क्वेश्चन कभी हमसे पुटअप किया था सर, एमीटर का रेसिस्टेंस क्यों कम होता है और उसे सीरीज में ही क्यों जोड़ा जाता है. एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अ करंट. जो आगे डेफिनेशन में लिखाएंगे, एमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है विच हेल्प टू द मेजर ऑफ करंट. करंट को मेजर करता है. नाउ रेसिस्टेंस इज वेरी हाई because it is series, it is series, so resistance very high, so we cannot use a high resistance in a ammeter. अगर हम हाई रेसिस्टेंस का एमीटर यूज करेंगे तो दोनों रेसिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा और मेरा करंट फ्लो को सही मेजर नहीं कर पाएगा. सो वी कैन यूज अ वेरी लो रेसिस्टेंस इन अ एमीटर. ओके नीरज? यस सर. और ये समझ में आ गया जब हम जो है सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो? यस सर, समझ में आ गया सर. चले, एनी क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट, रेज योर हैंड. नाउ स्टूडेंट्स, चले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल. फिर इसको आज जो मैं दे रहा हूं स्टूडेंट, इसको आप लोग जो है घर पे प्रैक्टिस करेंगे और अगले क्लास में, अपकमिंग क्लास में मैं फिर इस पे जो है डिटेल से जाऊंगा. इन पैरेलल, पैरेलल में कैसा होता है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट वी एयर एट now students, with parallel, that means we know about it. parallel तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे. ओके, सभी को इसे ज्वाइंट करेंगे स्टूडेंट. इसको भी ज्वाइंट कर दीजिए.
पैरेलल में ये पैरेलल हो गया, थोड़ा सा इसको ज्वाइंट कर दीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज R1, R2, R3. Okay students, here be. Now student, here only two nodes, 1 and 2. So its current will be change, but potential difference always same. Potential difference cannot fluctuate. In this case, in this currents are changeable. Currents are changeable, but no currents are changeable. ठीक है, currents is कर दीजिए, एक ही currents changeable. Currents is changeable, but potential difference is same. Potential difference is same. So because it's have two nodes, so potential difference always same. Now here current may be changed. Current is changeable. So current flow in all circuit. पूरे सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा है? I. But here I1, I2 and I3. I1, I2 and R3. So student, I1 equal to, we know about I equal to student V upon R. So I1 equal to V upon R1. I2 equal to V upon R2. I3 equal to V upon R3. So student, total current in circuit is I. So I equal to student V upon R, and I equal to I1 plus I2 plus I3. Now V upon R equal to student V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. नोट कर लेंगे स्टूडेंट, फिर आगे चल रहे हैं. फरहान, नोट कर लेंगे. आई होप स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, V upon R equal to V is common 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now VV cancel. So student, 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the formula in a parallel.
Now student, calculation this. After then calculation, in a parallel, resistance is very few minimum. Resistance is minimum. यानी रेसिस्टेंस इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. देन स्टूडेंट्स, वी कैन यूजिंग अ वोल्ट मीटर in a highly resistance to the maintain of resistance in circuit. हम वोल्ट मीटर का यूज किस लिए करते हैं? टू मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. टू मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. इट हैज हाई resistance to maintain this low resistance. इसी लो रेसिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज हम लोग पैरेलल में करते हैं स्टूडेंट, और उस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होता है. यानी क्वेश्चन है, नाउ टेक वन न्यूमेरिकल स्टूडेंट. एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसके बाद हमारे समझ में थोड़ा और क्लियर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये नोट कर लिए होंगे आई होप. इसको डीप में भी जाएंगे जो अगले क्लास में. अभी एक न्यूमेरिकल पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट, टू रेसिस्टेंस, टू रेसिस्टर, resistors which have resistance tenses 10 ohm, 10 ohm and 5 ohm. टेन ओम और 5 ओम है, तो फाइंड द resistance when it is combined combining it is combining in series and or parallel सीरीज या पैरेलल दोनों में से किसी में कंबाइन करते हैं तो दोनों का अलग अलग रेसिस्टेंस होगा. तो एंड लिखेंगे स्टूडेंट, एंड सीरीज एंड पैरेलल. अगर एक बार सीरीज में कर दें, एक बार हम लोग जो है पैरेलल में करते हैं, तो फाइंड आउट करना है टोटल रेसिस्टेंस स्टूडेंट. तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ सीरीज it is 10 ohm, it is 5 ohm. Okay students, to total calculate the total resistance. V remains same, I remains same. तो R इक्वल टू टोटल R इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? R1 प्लस R2, दैट मीन्स 10 ओम प्लस 5 ओम. ओके स्टूडेंट, यानी 15 ओम in a series, but in a parallel students. Drawing.
ड्रॉ कर लेंगे आप लोग स्टूडेंट, इसको इन पैरेलल कर दीजिए। हेयर 10 ओम, हेयर 5 ओम, इन पैरेलल कैलकुलेट कीजिए। इन पैरेलल स्टूडेंट 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon R equal to student 1 upon 10 ohm plus 1 upon 5 ohm. तो स्टूडेंट आपके पास तो क्वालिटी है 10, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब नाउ 10 1 plus 2, that means 1 upon R equal to student 3 upon 10 ohm. Now cross multiplication student, R equal to 10 ohm upon 3. In a series student 15 ohm resistance, resultant resistance is 15 ohm, but in a parallel resultant resistance is 10 upon 3 ohm. That means if any resistors are added in a series, then its resistance is very high, or when resistors are added in a parallel, then resistance is very low. So in this case, we are using to the measure of current is low resistance ammeter, which have a low resistance. Okay, but in this case we are measuring of potential difference in a circuit, then we can use a voltmeter to add in a parallel has a high resistance to maintain them. ओके स्टूडेंट, यही कारण है जो वोल्ट मीटर को हम जब पैरेलल में ऐड करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और यही रीजन है स्टूडेंट, जब हम आमीटर को किस में ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। आर्मीटर को हम लोग किसकी के लिए यूज करते हैं, करंट मेजर करने के लिए, तो उसको हम लोग किस में यूज करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन अपकमिंग क्लास, आने वाले क्लास में मैं इस चीज को और डीप में ले जाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे। अगला क्लास सिंगल न्यूमेरिकल बेसिस होगा स्टूडेंट, और इसमें कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट, एनी क्वेश्चंस, आस्क विद मी। या नीरज, सर हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी सर, कल रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में जो कंपेयर किए थे, हाँ तो सर देखिए कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर, बट रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर। व्हाई सर? बिकॉज रेसिस्टेंस मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, रेसिस्टेंस बताया था विच आर अपोज द फ्लोइंग करंट। ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर, यस सर। but resistivity is the quality, is a measure of resisting power, just like example in a work and power, both are differ। वर्क का डिफिनेशन क्या कहते हो स्टूडेंट, बताओ, व्हाट इज वर्क?
Hello. Same student resistance to a quality to अपोज द फ्लोइंग करंट, वो करंट फ्लो करने की जो है उसको अपोज करता है रेसिस्टेंस, बट रेसिस्टिविटी इज द क्वालिटी और मेजर टू रेसिस्टिंग पावर। रेसिस्टिंग पावर तो सभी मेटल का रेसिस्टिंग पावर अलग अलग होगा ना स्टूडेंट। रेसिस्टेंस को हम तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्या मेटल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट? मेटल के क्वालिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर कॉपर का मेटल है तो उसकी रेसिस्टिविटी एक फिक्स है स्टूडेंट, 1.7 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर, ओम मीटर, बट इट्स रेसिस्टेंस नॉट फिक्स। रेसिस्टेंस फिक्स नहीं है। कभी हम जो है क्या करेंगे, मोटा कॉपर वायर यूज करेंगे, कभी बहुत लेंथी कॉपर वायर यूज करेंगे, कभी बहुत वेरी शॉर्टर कॉपर वायर यूज करेंगे, बट रेसिस्टिविटी कैन नॉट चेंज, बट रेसिस्टेंस में भी चेंज। इट इज डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। नीरज, लिसन में, हेलो नीरज, नहीं सुन नीरज, म्यूट हो गया। आर यू लिसन में? कोई है? हेलो सुरभि, आपने क्वेश्चन किया रेसिस्टेंस इज ग्रेटर इन सीरीज देन पैरेलल, यही क्वेश्चन है। बिकॉज रेसिस्टेंस सीरीज में हम लोग जैसे ही यूज करते हैं तो इट हैव ओनली वन नोड, सो इट्स करंट ऑलवेज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। So total potential equal to V equal to V1 plus V2 plus V3 plus V, so okay, but in a parallel they have 2 nodes, 3 nodes, 4 nodes, so current flow in these nodes, current flow in these nodes, current flow in this node, so current change. We know that current equal to V upon R, so we can calculate it. If any confusion is students, I hope आप लोग जो है डिफरेंट बुक सर्च करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इन अपकमिंग क्लास जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पे डील करेंगे और इस रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को और अच्छे से डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ। सो स्टूडेंट, आप जानते हैं जो आपके इलाके में भी आ चुका है कोरोना वायरस, सो सेफ एंड स्टे इन योर होम। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन स्टूडेंट, थैंक्स फॉर